सो हम चैप्टर के चंद सासों पे रुके, राइट। चैप्टर ऑलमोस्ट यूनिट फर्स्ट आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो yesterday we understood the difference between partnership firms and the companies, right? Companies more safer way of doing business than the partnership because of limited liability feature in case of companies limited by shares or limited by guarantee. However, if the company is incorporated as unlimited company, unlimited liability company, then liabilities are unlimited, just like partnership, right? Then मैंने बोला कि companies basically on the basis of number of members we divide into two categories: private company and public company. Private company are those companies, right, in which they restrict through their articles of association, right, the three acts. One, the number of members will not exceed 200. So maximum number of members is 200. Then second, it restricts free transfer of the shares, right? So you cannot freely transfer the shares held by you in a private limited company. And third, it prohibits, restriction and prohibition में words में different है. Restriction on the transfer of the shares and prohibition on accepting, right, deposits, right, money, or allowing public to subscribe the shares or securities of the company. So now, right, अगर ये तीन restrictions articles के through है तो try to understand it is which company. It is a private limited company. If there are no restrictions as such, then it is a public limited company. पहले when I was student और जो आपने 11-12 में सीखा है, right, in your state board, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एंड पब्लिक लिमिटेड केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, विच इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल एज पर, राइट, कंपनीज एक्ट 2013. देन दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के एंड पे प्राइवेट लिमिटेड होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के नाम के एंड में लिमिटेड होता है, ठीक है. देन ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, हु इज रियल ओनर, who is real owner, companies are divided into public sector companies, that is government company, and private sector companies. Public sector company is a company where, right, the real owner is the government. Real owner, I simply mean the government owns more than 51% of the paid up capital of the company. 51% or more than 51%, ठीक है. So that can be just by central government or just by state government or together, put together 51% or more. Then private sector companies are companies where the real owner is, right, your private sector and not the government. Then on the basis of liabilities, company with limited liability, company with unlimited liability. Company with limited liability, that limited liability is because of capital, share capital, because of guarantee, or by both. If companies are limited by shares, right, the shareholders liabilities to the extent of unpaid value of the shares, unpaid value on the shares with him or subscribed by him, ठीक है. If he has paid the entire amount, then in that case उसकी कोई liability नहीं है. Then so unpaid value of the shares held by him. फिर मैंने बोला कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में क्या आता है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में आता है, राइट. इन सच केस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या करते हैं, राइट, मेंबर्स ऑफ द कंपनी गारंटी टू द कंपनी दैट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इफ कंपनी रिक्वायर्स सम फंड्स टू पे ऑफ टू देयर क्रेडिटर्स, दे विल कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम. और मैंने बोला जनरली सेक्शन 8 कंपनीज विच आर फॉर्म फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस आर लिमिटेड बाय गारंटी. Then third is both.
मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स एज वेल एज लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों का कॉम्बिनेशन। देन अनलिमिटेड कंपनीज में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट, देयर लायबिलिटीज, राइट, इज अनलिमिटेड। उसके बाद, राइट, यहां तक हमने देखा। तो पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, बराबर। However, in case of companies, if it is limited by share, right, liability is limited to the extent of what? Unpaid value of the shares. In case of limited by guarantee, like it is limited to the extent of what? Right, guarantee given by the members. And in case of unlimited company, their liability is always and always unlimited. So ये था। Even there is another type of company like holding company and subsidiary company. Try to understand. ठीक है, I won't go in detail with that. I don't require that. Holding मतलब parent company and subsidiary मतलब, right, the company in which parent company has majority of the share. अगर 51% से 50 से ज्यादा अगर किसी कंपनी के पास शेयर होल्डिंग है एक आधी कंपनी की, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, और दूसरे कंपनी को सब्सिडरी बोलते हैं। टाटा सन्स लिमिटेड, टाटा सन्स इज ए पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स की जो शेयर कैपिटल है उसमें से 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय होम, राइट, टाटा कंपनी, टाटा सन्स लिमिटेड। सो टाटा सन्स बिकम्स होल्डिंग एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड बिकम्स सब्सिडरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारी कंपनीज है, आपने सुना होगा, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे उनके। तो मेन इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विच इज होल्डिंग एंड उनका वो ग्रुप है। खाली सब्सिडरी होल्डिंग के लिए शेयर होल्डिंग इज नॉट कंडीशन, राइट, अदर भी क्राइटेरियाज है, तीन ओवरऑल क्राइटेरियाज है विच यू विल लर्न इन द कंपनीज एक्ट, सो आई वोंट डिस्कस राइट नाउ। सो राइट, ये पता होना चाहिए प्राइमा फेसिया। एंड देन, राइट, हमने देखा कि कंपनी इज अ डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट। कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, राइट, पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में फर्म्स पार्टनर्स इटसेल्फ मेक्स फर्म। पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी होती है पार्टनरशिप की, एक्चुअली इट इज अ जॉइंट एस्टेट ऑफ द पार्टनर्स। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज ऑफ द कंपनी एंड नॉट, इट इज नॉट ए जॉइंट एस्टेट। पार्टनर्स को शेयर इन द प्रॉफिट मिलता है, राइट, एंड मेंबर्स को प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड डिविडेंड डिक्लेरेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। सो ये सब हम, राइट, कल हमने देखा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। एक स्टूडेंट ने कल मुझे पूछा भी था कि सर पार्टनरशिप के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है और कंपनीज के लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। देयर, वैसे देखा जाए देयर आर वेरी लाइक, तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस। कंपनीज के लिए ऑडिट इज मैंडेटरी। अगर आप कंपनी के अंडर बिजनेस करते हो, यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑडिटेड फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स और नॉन कॉर्पोरेटेड एंटिटीज, राइट, उनके लिए टैक्स ऑडिट कंसेप्ट है, टैक्स ऑडिट कंसेप्ट है। वो सब बिजनेसेस, मैं अदर देन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जिनका टर्नओवर, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आएगी, बट जब आप इंटर में जाओगे तो आपको समझेगा कि टैक्स ऑडिट क्या होता है। या जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो यू विल टेक प्राइड इन डूइंग टैक्स ऑडिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सब ऑर्गेनाइजेशन जहां पे टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा है, 1 CR से ज्यादा है, राइट, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको बोलते हैं टैक्स ऑडिट। ठीक है, तो इसे देखा जाए तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस, बट जो प्राइमरीली हाईलाइट किए वो बुक में वो मैंने लिए। ठीक है, नाउ we will do the second important is HUF. I know you must be knowing HUF, बट मैं कुछ ऐसी चीजें बोलने वाला हूँ कि जो आपने आपके 11th-12th में नहीं सीखे थे, राइट। सो हम HUF करने वाले, ध्यान देना। सो HUF का मतलब क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉमन एंसेस्टर के थ्रू, राइट, अगर आप लिनियरली नीचे आते हो, राइट, डिसेंड करते हो आपकी 3 जनरेशंस, उसको हम बोलते हैं, राइट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली, ऐसे उसको बोला जाता है। उसमें हिंदूज, जैन, देन सिख, राइट, कौन कौन से बोले, हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट, ये 4
रिलीजन्स के लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकते हैं, मतलब हिंदू के डेफिनेशन में वो लोग आते हैं। सो उसमें क्रिश्चियंस नहीं आते, राइट। उसके बाद उसमें पारसीज नहीं आते एंड मुस्लिम्स नहीं आते, मतलब ये तीन रिलीजन्स हिंदू के कैटेगरी में नहीं आते। मतलब अगर सपोज कोई पारसी फैमिली एक फैमिली बिजनेस करती है, इट डज नॉट क्वालिफाई एज HUF, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ध्यान देना, HUF इज गवर्न बाय राइट हिंदू लॉ और हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ के अंडर वो गवर्न की जाती है। एंड इंडिया में वो मेजर है, इसलिए हम उसके हमारे सिलेबस में आगे। अब मैं HUF की बात कर रहा हूं। ये तो पता है कि HUF में एक होता है कर्ता, द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर इज ए कर्ता, ही इज अ मैनेजर ऑफ योर HUF। वो आपके लिए बोरोइंग्स करेगा, आपके लिए डिसीजंस लेगा, राइट। सो देयर इज कर्ता, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये पता होना चाहिए, राइट। HUF and try to understand, being a chartered accountant I am very interested in HUF because HUF is an instrument for the tax savings as well। टैक्स प्लानिंग के लिए HUF किया जाता है। आई हैव माय राइट, अब मैं आई एम अनमैरिड इसलिए मेरी खुद की HUF नहीं होती, बट आई एम ए पार्ट ऑफ HUF माय पेरेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। वंस आई गेट मैरिड आई कैन फॉर्म माय ओन HUF, ट्राई टू अंडरस्टैंड। HUF इज यूज्ड फॉर द टैक्स प्लानिंग, टैक्सेशन पर्पस के लिए HUF इज ए सेपरेट एंटिटी, उसका अलग से इनकम रहेगा और मेरा पर्सनली अलग से इनकम रहेगा। सो आई कैन राइट, एंड HUF को हम इंडिविजुअल जैसे टैक्सेशन करते हैं, तो यू इन टैक्सेशन इन इंटर यू विल लर्न इट इन डिटेल। HUF बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स प्लानिंग के लिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, HUF, ठीक है। सो HUF में कौन कौन होते हैं, एक होता है कर्ता, एल्डेस्ट फैमिली मेंबर में बी मेल और फीमेल। पहले 2005 के पहले, राइट, ए फीमेल कैन नॉट बिकम HUF का कर्ता, बट 2005 में एक अमेंडमेंट आ गई इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ओल्ड एक्ट था, उसमें एक अमेंडमेंट आ गई 2005 में। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 की उसके अनुसार ए फीमेल कैन बी को पार्सनर इन हर फादर्स HUF। सो करता रहता है, दूसरा रहता है को पार्सनर्स, ये आपको पता होगा, एंड तीसरा होता है मेंबर्स। आप बोलोगे सर नहीं समझाइए, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। कर्ता, कर्ता कौन रहेगा पता है, को पार्सनर्स में से एक बंदा कर्ता रहेगा, द एल्डेस्ट वन हु विल बी टेकिंग और मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द HUF। समझ में आ रहा है। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। सो जस्ट एक सेकंड, खाली स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। यस, हाँ, HUF में तीन पार्टीज होती है देखा जाए तो। एक होता है कौन, यूर कर्ता, कर्ता इज द एल्डेस्ट को पार्सनर, मतलब कर्ता को पार्सनर ही होता है, बट उन को पार्सनर्स में से जो एल्डेस्ट रहेगा ही विल लुक आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। एंड मेंबर्स, सर नहीं समझाइए मेंबर्स मतलब क्या, आर द को पार्सनर्स आर नॉट द मेंबर्स, or they are members, but every member is not co-parsoner, every co-parsoner is a member of HUF, but every member is not a co-parsoner। क्यों, try to understand example, क्या बोल रहा, ध्यान देना, मैं हूं और राइट मेरी वाइफ आती है सपोज, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं और मेरी वाइफ, नाउ ये जो मेरी वाइफ रहेगी, राइट, ये जो मेरी वाइफ रहेगी वो मेरे HUF की
को पार्सनर रहेगी या उसके पेरेंट्स के एचयूएफ की को पार्सनर रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल, राइट, शादी के पहले, राइट, वो जो लड़की है, राइट, शी इज को पार्सनर ऑफ हर फादर्स, राइट, एचयूएफ. सो पेरेंटल एचयूएफ की वो क्या रहेगी, को पार्सनर रहेगी शादी के पहले, व्हेन शी इज अनमैरिड, तो वहां पे वो को पार्सनर है. सो मैं बोल रहा था कि जो मेरी वाइफ रहेगी बिफोर द मैरिज, राइट, व्हेन शी इज अनमैरिड, शी इज को पार्सनर, शी इज को पार्सनर ऑफ हर पेरेंट्स, राइट, एचयूएफ. सो उनके एचयूएफ की को पार्सनर रहेगी. मैरिज के बाद क्या उसका स्टेटस चेंज होगा क्या, हमें वो समझना है. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. लड़कियों को ये चीज पता होनी चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. बिफोर मैरिज शी वॉज को पार्सनर ऑफ, राइट, हर फादर्स एचयूएफ, वहां पे वो को पार्सनर थी. टुडे ए मेल मेंबर एंड फीमेल मेंबर ऑफ कॉमन एंसेस्टर इज ट्रीटेड एट सेम. मतलब वो उसके पेरेंट्स के यहाँ पे, जो मेरे ससुर जी है, राइट, उनके, राइट, फैमिली में, राइट, शी, मेरी वाइफ उनकी डॉटर है, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड उसका भाई भी है, सन. ठीक है, जो मेरा साला है. अब ध्यान देना क्या हो रहा है. ये जो डॉटर है, जो मेरी वाइफ होगी बाद में, बोथ daughter as well as son are the co-parsoners of, right, this HUF. मेरे जो ससुर के HUF है उसमें वो co-parsoners है दोनों भी. एंड अब क्या हो रहा है, शादी के बाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शादी के बाद, राइट, शी बिकम्स, राइट, माई वाइफ एंड शी बिकम्स मेंबर ऑफ माई HUF. वो मेरी को-पार्सनर नहीं हो जाती है, मेंबर ऑफ माई HUF. वो मेरी HUF की मेंबर होगी. समझ में आ रहा है. सो शी वोंट बी को पार्सनर ऑफ माई HUF. शी रिमेन्स को पार्सनर ऑफ हर पेरेंट्स HUF ओनली. वो को पार्सनर उसके पापा के ही HUF की रहेगी, मेरी HUF की वो मेंबर होगी. एंड देयर इज अ डिफरेंस इन द राइट ऑफ द मेंबर एंड को पार्सनर. को पार्सनर कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. Member cannot demand partition of my property. My wife cannot demand that partition of my HUF. Right? Try to understand. But agar I can demand because I am co-parsoner of my father's HUF. Try to understand. I can demand for the like partition. My wife cannot demand the partition. But जब वो partition होगी तो उसमें उसको share मिलेगा because she is a member. Member cannot demand partition of the HUF property. Full partition or partition जैसे भी होता है वैसे. Member cannot claim or right for the partition of the property, but member is entitled to share, right, if property gets like divided. अब मेरी जो वाइफ है वो मेरे HUF की, मेरे फैमिली के HUF की मेंबर रहेगी, को पार्सनर नहीं. And she will continue to be co-parsoner of her parents' HUF. Now she can claim, right, division of not my property but her father's property. Try to understand. She has right to claim partition of her parents' property and not my property. My property मतलब HUF की बात कर रहा हूँ. HUF is right, HUF business कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. इसके वजह से क्या होता है कि इवन जो बेटी है वो शादी होने के बाद भले ही पराया घर जाए, राइट, शी हैज अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स. एंड एट द सेम टाइम शी बीइंग मेंबर ऑफ हस्बैंड्स HUF, राइट, शी इज इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉपर्टी. शी कैनॉट क्लेम द पार्टीशन बट शी कैन क्लेम द शेयर इन द प्रॉपर्टी. तो उस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अगर मैं मेरी HUF लेता हूं, अगर मैं मेरी HUF लेता हूं तो उसमें मेंबर्स, उसमें को पार्सनर्स कौन रहेंगे, मेरे बेटे क्या रहेंगे, को पार्सनर्स रहेंगे. मेरी बेटियां, राइट, मेरे सन्स एंड माय डॉटर्स विल बी
co-parceners of my HUF. But मेरी daughter in law, मेरे son की wife, she won't be co-parcener of my HUF, but she will be member of my HUF. And मेरी बेटी भले ही शादी होने के बाद दूसरे के इधर जाए, she will continue to be co-parcener, and co-parcener has the right of demanding partition of the property. Member does not have. तो एक आधी फैमिली लेते तो उसमें को पार्सनर्स को रहेंगे उस फैमिली के बेटे एंड बेटियां, सन्स एंड डॉटर्स, वेदर मैरिड और अनमैरिड. समझ में आ रहा है? However, the daughters-in-law of a family are not co-parceners. They are, right, members of the HUF. They are co-parceners of their parent HUF. उनके पेरेंट्स के HUF के वो co-parceners रहेंगे. कल जाके मेरे साले की भी शादी होती है, उसकी वाइफ आ जाती है. नाउ उसकी वाइफ, ये जो मेरी वाइफ जहां पे co-parcener है वहां पे उसका स्टेटस क्या रहेगा? She will be member. Because उस HUF में she cannot be co-parcener because she is not, right, son or daughter. Try to understand. She is a wife of the son, but she is co-parcener of her father's HUF. समझ में आ रहा है? ऐसे होता है. तो daughter is always and always co-parcener. Daughter is always, whether unmarried or married, daughter is always co-parcener. Even after marriage, she will remain as a co-parcener. मतलब वो अपने पिता के प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा हमेशा रहेगा, and she can claim it. She has a right to ask for the division. On the contrary, अगर वो husband के HUF में, जब वो शादी के बाद husband के HUF में, she remains as a member. So ये 2005 में क्या हुआ? बड़ी अमेंडमेंट आ गई. ये 2005 में अमेंडमेंट आ गई. पहले तो daughters, राइट, आफ्टर देयर मैरिज दे उनका को पार्सनर का स्टेटस ही चला जाता था. अब ऐसे नहीं है. शादी होने के बाद भी उसके पेरेंट्स के HUF में शी इज व्हाट? को पार्सनर. वाई हस्बैंड के HUF में वो मेंबर होती है. भले ही हस्बैंड के HUF में शी कैन नॉट क्लेम फॉर द पार्टीशन, राइट. ससुराल में वो पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती, मायके में वो पार्टीशन डिमांड कर सकती है. बट अगर ससुराल में पार्टीशन होता है तो शी हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी. दैट इज अ डिफरेंस. सो एक्चुअल में ये आप और चीजें इन डिटेल में सीखोगे इन योर टैक्सेशन, राइट. टैक्स में आप इन डिटेल में सीखोगे, राइट. किसी ने क्वेश्चन पूछा है, इन दिस सेंस डू यू बिकम ए मेंबर ऑफ योर वाइफ्स HUF? डू आई बिकम मेंबर? ट्राई टू अंडरस्टैंड. गर्ल्स मैरिड, डॉटर के केस में वैसे होता है, राइट. इसके केस में नहीं होता है. किसके? सन के केस में नहीं होता है. ठीक है. सो आगे नेक्स्ट. सो ये डिफरेंस है. सो को पार्सनर्स में से क्या होगा? करता होगा. तो अगर एग्जांपल एक फैमिली में एक लड़का है और एक लड़की है, एक फादर के बाद एक लड़का है और उसकी बेटी है, एंड इनमें से कोई भी एक क्या हो सकता है? करता हो सकता है आगे जाके. द एल्डेस्ट फैमिली को पार्सन, एल्डेस्ट को पार्सन बिकम करता, एंड करता's लायबिलिटी आर अनलिमिटेड. जस्ट ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया कि 2005 में अमेंडमेंट हुई है. उसके अंडर एवरी गर्ल इज को पार्सनर इन हर फादर्स HUF बिफोर मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज. जब वो मैरिज के बाद अपने हस्बैंड की इधर जाएगी, शी विल बी ट्रीटेड एज मेंबर बट नॉट एज ए को पार्सनर. अगर उसको करता होना है तो शी कैन नॉट बिकम करता इन हर हस्बैंड्स HUF बिकॉज शी इज को पार्सनर ओनली कैन बिकम करता. तो अपने हस्बैंड के इधर करता नहीं हो सकती, बट शी कैन बिकम करता इन हर पेरेंट्स HUF बिकॉज वहां पे शी को पार्सनर है. ओनली को पार्सनर कैन बिकम व्हाट? करता. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए, राइट. नाउ आगे, ठीक है. सो अब हम डिफरेंसेस करते हैं, राइट. सो लिखा है, ध्यान देना. मोड ऑफ क्रिएशन. HUF partnership is result of agreement. HUF is a result of, right, HUF is result of your birth, your right, your status, right, arises from status and not agreement. It is by operation of law, Hindu law. If you are if you're taken birth in a family, whether male or female, you become co-parsoner of the, right, what you are, that family. और अगर आप शादी के बाद अगर किसी फैमिली में जाते हो तो उस फैमिली के आप मेंबर हो जाते हो. ठीक है. आगे
Then regulating law, IPA Indian Partnership Act 1932, यहाँ पे हिंदू लॉ. Then persons involved, they are called as partners, यहाँ पे called as co-partners. Co-partners में से ये कर्ता होता है, ठीक है. So कर्ता अलग और co-partner अलग नहीं. Every कर्ता is co-partner, but every co-partner may not be कर्ता. समझ में आ रहा है? Every co-partner is a member, but every member may not be co-partner. आगे interest in the business, right? Partnership does not acquire interest in the partnership business by birth, right? It has to be result of agreement. And in case of joint family business, the members acquire interest by their birth. By birth they become member. So ध्यान रखना, पार्टनरशिप में भले आप माइनर, आपको एग्रीमेंट के थ्रू करना है, और भले आप माइनर हो तो भी आप पार्टनर एज सच नहीं होते. आपको मेजर होने के बाद 6 मंथ्स के भीतर आपको डिसाइड करना होता है. यहाँ पे इवन माइनर कैन बिकम मेंबर और को पार्टनर ऑफ एचयूएफ. समझ में आ रहा है? उसके लिए देखा नहीं जाता वो माइनर है इसलिए वो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज बाय बर्थ. एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर, राइट, इट हैज टू बी राइट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एंड यहाँ पे कैसे होता है? नियरली बाय बर्थ. implied authority, right? Each partner has an implied authority to bind the firm by the acts done in the ordinary course of the business of the firm. Means every partner has entitled to take active part into the business. Rights of partner में सीखेंगे. Every partner has a right to take part into the business. यहाँ पे खाली कौन करता है? कर्ता. Only the कर्ता, usually the eldest member of the family, has implied authority to contract for the family business and for the other members of the family. Then position of minor. A minor can be admitted to the benefits of the partnership with the consent of other partners. And यहाँ पे minor becomes its member merely by birth. Merely by birth. No need to wait till 18th of the age. आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी? अरे एक्सेप्ट करता ऑल अदर कोर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती? लिमिटेड रहती. तो कोई टेंशन है क्या? नहीं. यहाँ पे राइट, his liability has to be limited, right, when he is a minor. Then आगे liability of members, ठीक है. The liability of the partner is unlimited. सब partners की liability क्या रहती है? Unlimited. The share of each partner in partnership property along with his private property is liable to discharge the partnership's liabilities. Karta is personally liable for the debts of the family, whereas other members are liable only to the extent of their share or interest in the joint family business. Alright, beyond that they are not liable. The other members are personally liable only if they have also contracting parties. If they have decided कि हम भी, हमारी भी liability unlimited रहेगी, in that case their liability is unlimited, otherwise no. Generally only कर्ता की liability क्या रहती है? Unlimited. बाकी सब members की liability limited रहती है. Right of the members to demand accounts. Every partner has right to demand for the accounts. Even deceased partner के representatives have right to demand the accounts of the firm. समझ में आ रहा है? However, right, कोई भी other than कर्ता, कोई भी कर्ता, मतलब कर्ता के पास सब accounts रहेंगे. No co-partner or a family member can demand accounts फ्रॉम द कर्ता. पार्टीशन होने के बाद भी नहीं, कभी नहीं मांग सकता, कभी भी नहीं. हमने यहाँ पे देखा था पार्टनरशिप में कि माइनर कैन डिमांड, राइट, इफ ही डिसाइड्स टू सीवर हिज रिलेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप. यहाँ पे वो भी स्कोप नहीं है. कभी भी आप कर्ता से अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकते. एवरी मेंबर हैज ए राइट टू एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड मेक कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, and ask for the account of profit and losses. The member of the joint family business cannot ask the karta, right, for the accounts of his past dealing concerning the family business. Similarly, they cannot ask the karta for the accounts of profit or loss. Next, registration. Partnership में registration optional है, right? It is not compulsory, right, that it should be registered, but indirectly
law has made registration compulsory because an unregistered firm suffers from certain disabilities. ये सेक्शन 69 है जो मैंने बहुत बार एटलीस्ट उसका जिक्र तो किया है, ठीक है। और कल मैंने बोलते बोलते बोला कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, हाउएवर थर्ड पार्टीज कैन फाइल केस अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म। ये सब सेक्शन 69 में लिखा है। डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, राइट। इसको रजिस्ट्रेशन की कोई वैसे भी जरूरत नहीं है। देन consequences of death of a member. If nothing is decided between the partners, if deed is silent कि डेथ होगी तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स। बट डेथ ऑफ ए co-partner or a member of a HUF does not amount to, right, winding up of the HUF or dissolution of the HUF. HUF has a like perpetual succession, वो चलता ही रहेगा, समझ में आ रहा है। Unless otherwise agreed, it dissolves on a death of a partner. Unless otherwise agreed मतलब if there is no agreement to that effect on a death of a partner, right, partnership dissolves. It continues to operate even after the death of the co-partner till it is divided. Again, management. Who will look after the management? All the partners are equally entitled to take part in the partnership business, but by virtue of their agreement, they may assign the duties to some of the partners. कोई एक्टिव रहेंगे, कोई स्लीपिंग रहेंगे। वैसे देखा जाए everyone has right to take active part in the business, but वही डिसाइड करते हैं कि कौन एक्टिव रहेगा, कौन स्लीपिंग रहेगा, ठीक है। In case of your HF, only Karta has that right. The right of the management of a joint family business generally vest means उसके पास रहता है, vest in the Karta, the governing male member or female member, ठीक है। Karta can be male or can female. Calling for the accounts on closure. So अगर partnership close हो जाती है, HF close हो जाती है, HF close होगी मतलब HF का partition हो जाता है, right? Understand? तब क्या होगा? A partner can bring a suit against the firm for the accounts provided he also seeks the dissolution of the firm. HF में क्या है? On the separation of the joint family, actually I'm using Ticona broadband, but I don't know क्या प्रॉब्लम आता है, वो बहुत बार लॉग आउट करता है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला आपको, राइट, ऑन द सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, दैट इज डिवाइडेशन, राइट, डिवीजन ऑफ द HOF प्रॉपर्टी, ए मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ द फैमिली। मैंने बोला कभी भी ए मेंबर कैन नॉट आस्क अकाउंट्स फ्रॉम द कर्ता, कभी भी नहीं, जब वो HOF है या वो पार्टीशन होने के बाद भी नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, इन केस ऑफ पार्टनरशिप नंबर कैन नॉट एक्सीड 50, हाउएवर इन HOF देयर इज नो अपर लिमिट। अगर याद रहा होगा सेक्शन 464 में दो एक्सेप्शंस थे। सेक्शन 464 में दे हैव गिवन यू टू एक्सेप्शंस टू द नंबर 100, वहां पे नंबर 100 था, बट हमने देखा कि 2014 में जो रूल्स एप्लीकेबल हुए उसके अंडर वो 50 किया है, बराबर। नाउ उसमें दो एक्सेप्शंस थे अपर लिमिट के लिए, एक द पार्टनरशिप्स फॉर्म बाय प्रोफेशनल्स गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, और दूसरा था दूसरा कौन सा था, योर HUF के केस में मेंबर्स कैन बी मोर देन 100। HUF इज आल्सो एसोसिएशन, बट इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 100, एग्जांपल आप पांडवा की सोचो ना, राइट, वो 100 थे, उनके मम्मी पापा ले लो, राइट, उनके बच्चे ले लो, 3 जनरेशन देखनी ना, तो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा रहेगा ना। आप बोलोगे सर मर गए, बट उसके पहले तो सोचो ना। तो इन दैट केस, अब वो उस तब तो HUF नहीं थी, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 से ज्यादा अगर आप मुझे बोलते हो सर एक आधा एग्जांपल दो, तो ठीक है, ऐसे फैमिलीज होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है इतनी बड़ी, ठीक है। सो अगर ऐसी है जॉइंट फैमिली, इन दैट केस देयर इज नो अपर लिमिट। आगे number of members of HUF, right, who carry on business, right, there is no upper limit. Share in the business, in a partnership each partner has defined share by the virtue of agreement, and HUF में क्या होता है, share keeps on fluctuating, it gets enlarged because of death and it gets shrinkened because of birth। क्या लिखा है उन्होंने, in HUF the
no co-partners has definite share. His interest is fluctuating one. It is capable of being enlarged by deaths and diminished by births in the family. This is very important. जो नीचे लिखा है, joint Hindu family, the amendment in the Hindu Succession Act 2005, उसके पहले 1956 था. Hindu Succession Act 1956 के बाद कुछ उसमें चेंज ही नहीं हुआ था. ठीक है, 2005 में ही अमेंडमेंट आ गई. The amendment in Hindu Succession Act 2005 entitled all adult members, मतलब माइनर नहीं, अडल्ट मेंबर्स की बात कर रहा हूं, राइट. हिंदू मेल्स एंड फैमिली, ओके. सो लास्ट पॉइंट देख रहे थे हम एचयूएफ का, राइट. हमने देखा कि उस केस में, राइट, 2005 में एक अमेंडमेंट आ गई. अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट क्या हुआ, ध्यान देना. ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने, ध्यान देना, राइट. The amendment in the Hindu Succession Act 2005, right, entitled all adult members, Hindu males and females, to become co-partners in HUF. Adult members to become co-partner, मतलब minor will be member, but जब वो major हो जाएगा तो co-partner हो जाएगा. Try to understand. Then they now enjoy equal rights of inheritance due to this amendment, all male and female. On 1st February 2016, right, एक लैंडमार्क जजमेंट आ गया which allowed eldest family co-partners of the HUF to become karta. Even females now can become what? Karta. Then next difference is पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप. ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है टू अंडरस्टैंड द ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, तो ये जल्दी हो जाएगा, ध्यान देना. मोड ऑफ द क्रिएशन, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप. को ओनरशिप मतलब क्या, एग्जांपल मैंने बोला, एक सोल प्रोप्राइटर है, उसका बिजनेस है एंड उसकी डेथ होने के बाद वो बिजनेस उसके बच्चों के पास आता है. नाउ दे आर द को ओनर्स ऑफ दैट बिजनेस. दे आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज दे हैव बिकम, राइट, मेंबर्स ऑफ दैट बिजनेस बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस और बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नॉट एग्रीमेंट. तो वो को ओनर्स है, या एक प्रॉपर्टी है एंड वो दैट इज लाइक इनहेरिटेड बाय टू सन्स. ऐसे केसेस में दे आर को ओनर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो व्हाट इज द मोड ऑफ क्रिएशन? पार्टनरशिप इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट व्हिच मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. को ओनरशिप मे और मे नॉट अराइज बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट. को ओनरशिप एग्रीमेंट की वजह से भी हो सकती है, या इट मे बी बिकॉज ऑफ status by your birth or operation of law due to inheritance. Then so co-ownership because of agreement or because of any other reason हो सकती है. Partnership is always and always out of agreement as per section 5. Then business, partnership के लिए business is mandatory, existence में होना ही चाहिए. But co-ownership की केस में business can exist or can not exist. Try to understand. को-ओनरशिप के लिए बिजनेस इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. ओनरशिप, को-ओनरशिप कैन एग्जिस्ट विदाउट बिजनेस. लाइक मेरे प्रॉपर्टी है और दो भाई ने उसको रेंट आउट किया, दिस इज नॉट बिजनेस. आप बोलोगे सर रेंट आउट दिया वो बिजनेस है ना. दे आर नॉट कैरिंग ऑन ट्रांजैक्शंस एज सच, राइट. एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है. देयर शुड बी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, देन ओनली इट इज अ बिजनेस. ऐसे वो 10-15 प्रॉपर्टी परचेस करके अगर वो रेंट पे देना स्टार्ट कर दे तो वो बिजनेस हो जाएगा. ठीक है. सो it can exist, partnership cannot exist without business. Co-ownership can exist without business. Nature of interest, it involves community of interest. What do you mean by community of interest? Means sharing of profits and losses. Partnership में sharing of profits and losses होता है, both profits as well as losses are shared. Co-ownership may not necessarily involve, right, community of profit of losses. Means co-ownership में, right, you may not necessarily share profits and losses, but partnership में sharing of the profits is very important. Transfer of interest, right, can you transfer the interest in the partnership firm? No, but if you have to do that, you have to take consent of all partners. The partner cannot transfer his share to a stranger without consent of other partners. Co-owner can transfer his share in the joint property without the consent of other co-owner. A co-owner may transfer his interest or the rights in the property without consent of other co-owner. Next,
सो जब मुझे ट्रांसफर करना होगा तो को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, इसलिए विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर आई कैन ट्रांसफर माई शेयर इन द राइट दैट जॉइंट प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप में वैसे नहीं चलता। ऑथोरिटी ऑफ द मेंबर्स, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज को पार्टनर, partners are agent as well as principals. In case of co-owners, they are not agent of each other. Co-owner is not an agent of one co-owner is not agent of another co-owner. Partition of the property, right? Can you demand for the partition, right? A partner cannot ask for the partition of the partnership property, right? However, he has a right to share the profits or income arising out of that property. Co-owner can always go for partition of the property. Then, right, lien on expenses or for expenses. What do you mean by lien? Lien का मतलब क्या होता है? Try to understand. It means example, right? Example बोल रहा हूँ, मैंने किसी से example लोन लिया है and मैंने मेरा गोल्ड, it is loan against gold, तो मैंने गोल्ड रखा है गिरवी, तो that loan is against that gold. So I have kept gold as a lien. जो मैंने लीन रखा है उसके लिए क्या रखा है? गोल्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो राइट, आप उसको लाइक मॉर्गेज बोल सकते हो, या कीपिंग एन असेट इन पोजेशन ऑफ समवन, राइट, फ्रॉम हुम वी हैव टेकन सम बेनिफिट. अगर हम वो बेनिफिट रिफंड नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी भी हमें नहीं मिलेगी. लाइक काइंड ऑफ मॉर्गेज, काइंड ऑफ चार्ज. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. सो क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान देना. अगर पार्टनर फर्म के लिए कुछ एक्सपेंस करता है, अगर पार्टनर फर्म के लिए एक्सपेंस करता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेंस करता है, तो ही हैज राइट टू गेट दैट रिम्बर्स फ्रॉम द अदर पार्टनर्स. वो पार्टनरशिप फर्म से वो पैसा रिम्बर्स करवा सकता है. अगर पार्टनरशिप फर्म रिम्बर्स नहीं करती है तो ही हैज लीन ऑन दैट प्रॉपर्टी. वो ही कैन सेल दैट प्रॉपर्टी, कैन रियलाइज द मनी, एंड उससे उसका जो पैसा उसने डाला था वो रख के बाकी पार्टनरशिप को दे देगा. ऐसे होता है, राइट, पार्टनरशिप में. ए पार्टनर हैज लीन ऑन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम ऑन सच प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है एंड उसके लिए कोई पार्टनर एक्सपेंस करता है, राइट, ही हैज अ राइट टू गेट दोज एक्सपेंसेस रीइंबर्स. अगर उसको रीइंबर्स नहीं मिलता है, ही हैज अ राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी. ही कैन सेल दैट प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. क्या होगा, जब वो प्रॉपर्टी सेल होगी तो वो जो पहले पैसा आएगा उस प्रॉपर्टी से, वो उसमें से पहले जो पार्टनर का रिइंबर्समेंट है उसके लिए यूज किया जाएगा एंड बाकी विल बी यूज्ड बाय द पार्टनरशिप. समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है, राइट, lien फॉर एक्सपेंसेस. ए co-owner has no such right. So these were some of the like differences. You have to read them, you have to understand them, and जितने याद रखते आपको एग्जाम में लिखना होगा, राइट. एक तो डिफरेंसेस इसमें से एक तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, ठीक है. देन पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, एनपीओ, सिंपल वर्ड्स में एनपीओ, क्लब. जनरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लब्स में क्या होता है, क्लब्स आर फॉर चैरिटेबल पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव. पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए रहेगी. पार्टनरशिप के जो मेंबर्स होते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हो, एंड क्लब में होते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं, बराबर. पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर. क्लब मेंबर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर. पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. क्लब में जो क्लब मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. समझ में आ रहा है? सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो हम समझेंगे. द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब. पार्टनरशिप is a business oriented and profit and sharing of the profit. Partnership has a business oriented object, right? Objective is a business oriented, matlab commercial, and which is aimed of earning the profits and sharing that profit, not aimed at making the profits, and hence does not have any business interest as such. ठीक है? So it is not profit oriented, business oriented नहीं है. आगे टेन्योर क्या होता है? पार्टनरशिप is and club में देखा जाए, decease of a club member does not dissolve the club. Club has a perpetual succession. Club चालू ही रहेगा. However, if nothing is decided between the partners, death of a partner leads to dissolution of the firm. So tenure less रहेगा partnership firm में. Does not enjoy a long tenure as, right,
any change in the partnership affects its existence. It is not affected by change in the membership. आप member हो या नहीं हो, members का composition change भी होता रहेगा. However, club will continue forever. Agency. It is based on agency relationship between the partners. My actions binds other partners, their actions binds me. ऐसे members के केस में नहीं होता है. A member is not agent of other member, and so they do not bind each other with their acts. So they are not, right, agent of each other. Then definition, meaning क्या है? Partnership is an association of the persons formed for earning profits from business carried on by all or any one of them acting for all. What is club? Club is also an association of persons. दोनों association of persons है, right? Formed with object not earning profits but promoting some beneficial purpose such as improvement of health, providing recreation for the members, etc. Example, Rotary Club is the best example, right? So ऐसे clubs, right, generally they have been formed for the benefit of the members. Try to understand what is the relationship. Persons forming the partnership are called as partners and they are mutual agent of each other. Persons forming club are called as members, and a member of a club is not an agent of other member of the club. Interest in the property, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी रहती है वो एक्चुअली पार्टनर की जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है. क्लब की प्रॉपर्टी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ए मेंबर ऑफ द क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब. इसमें एक और डिफरेंस होना चाहिए. लायबिलिटी, राइट, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्लब मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. ठीक है. सो दीज वर, राइट, डिफरेंसेस. तो अभी मैं क्वेश्चंस लेता हूं कोई लोगों के, बहुत देर से उनके क्वेश्चंस पेंडिंग है. ठीक है, मैं एक एक लेता हूँ. हाँ बोलो. हाँ निवेश बोल, क्या क्वेश्चन है तेरा? सर सबसे पहले मेरा एचयूएफ का है. हाँ बोलना. HUF से रिलेटेड होगा related तो थोड़े मैं से आंसर क्वेश्चन. दूंगा, रिलेटेड होगा तो मैं आंसर दूंगा. थोड़े से क्वेश्चन है. हाँ. तो सर सबसे पहले कि मतलब कि एक एक एचयूएफ की फैमिली है, ठीक है, हाँ एंड एक करता है तो उसकी करता की बेटी जो है, डॉटर, हाँ तो वो बर्थ पर मेंबर हो गई और 18 इयर्स के बाद को पर्सनल हो गई, है ना? हाँ और बराबर. वो बाय बर्थ यू बिकम मेंबर, बाय बर्थ यू बिकम मेंबर, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी यू बिकम को-पार्सनर. हाँ हाँ, और वो किसी और एचयूएफ में शादी करती है, हाँ, तो उधर वो मेंबर हो गई. हाँ मेंबर हो गए. और हाँ बेटा, वही एक एचयूएफ के करते का बेटा, हाँ वो ऑन बर्थ मेंबर होता है और ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी को पर्सनल जाता है. हाँ बराबर. लेकिन वो वाइफ की फैमिली का एचयूएफ में मेंबर नहीं होता ना. देख, अगर आप लाइक काइंड ऑफ वैसे देखा जाए ना कि तू ये बोल रहा है ना कि जैसे डॉटर इन लॉ वैसे सन इन लॉ, राइट ना? राइट. हाँ तो वो भी हाँ होता है, वो भी होता है, ऐसे कुछ नहीं है. बट उसके कोई रिस्ट्रिक्शंस है. यू विल लर्न दैट इन इंटर टैक्सेशन. ऐसे. और सर ये भी कि या समझो कि एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड की फैमिली का खुद का एक एचयूएफ है और वाइफ की भी फैमिली का एक एचयूएफ है. हाँ तो जो फिर उसके सन्स फॉर्म होते हैं, हाँ तो क्या क्या. वो जो फिर वो हस्बैंड और वाइफ को वो चिल्ड्रन आते हैं और उनके हाँ बच्चे होते हैं. हाँ. तो वो बच्चे दोनों एचयूएफ के मेंबर्स या को पर्सनल नहीं रहेंगे क्या? नहीं, अगर सपोज तेरी बेटी की शादी होने के बाद उसको बच्चा होता है, ठीक है, तो हाँ वो तेरे फैमिली का मेंबर रहेगा और उसके पापा के फैमिली का को-पार्सनर रहेगा. नहीं, मतलब कि अगर मेरा एचयूएफ है और तो मुझे एक मैंने बोला बेटा ना, होता है, तुझे बेटा तो मुझे हुआ. बेटा, हाँ तो फिर तो हाँ वो तो उसको भी बेटा हुआ तो वो तेरा को-पार्सनर है ना तेरे फैमिली का. बेटी भी अच्छा उसकी बेटी भी को-पार्सनर है. बट बेटी का बेटा मेंबर रहेगा, को-पार्सनर नहीं रहेगा. अच्छा बिकॉज वो उधर को-पार्सनर रहेगा उसके पापा केस में. He cannot ask for the division of the property of his mother's, वो उसके मम्मी के पापा की प्रॉपर्टी पे डिवीजन के लिए वो राइट नहीं है उसको. ओके.
ऐसे तू तेरे मम्मी के Okay. पापा की प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं बोल सकता, तेरी मम्मी बोल सकती, तू नहीं। बट अगर उस मम्मी के पापा की प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो तेरी मम्मी वो मांग सकती है, मम्मी को शेयर मिलेगा एंड वो शेयर तुझे भी आएगा बाद में इनहेरिटेंस में, ऐसे। Okay. बट तेरे पापा की प्रॉपर्टी का तू मांग सकता है, बिकॉज Okay. तू, मतलब कि जो तेरी सन्स मम्मी नहीं रहते मांग हैं सकती वो, हाँ, पार्टीशन के जो लिए। सन्स रहते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं को पार्टनर, राइट, हाँ। बट जो सन्स और सन्स के बेटे, और लेकिन जो डॉटर है वो को पार्टनर बनती है, लेकिन डॉटर के जो भी बेटे होंगे वो वो सब मेंबर मेंबर रहेंगे, रहेंगे। ऑब्वियसली ना। वो कहाँ पे दूसरी जगह पे कोपार्सनर रहेंगे ना, हाँ। वो उसके पापा के इसमें कोपार्सनर रहेंगे ना। और और ये सब सर तुम टैक्सेशन में सीखोगे एक्चुअली, यहाँ पे नहीं, बट मुझे वो मेंबर अलग होते हैं और कोपार्सनर्स अलग होते हैं। एवरी कोपार्सनर इज अ मेंबर, बट एवरी मेंबर इज नॉट ए कोपार्सनर, बिकॉज दोनों के हाँ राइट्स वो अलग होते हाँ हैं। मैं Co-parsoner can demand for the partition of the property of the HUF. Member cannot demand. Member can just share. अगर वो पार्टीशन होता है तो उसको शेयर मिलेगा, बट वो डिमांड नहीं कर सकता। दैट इज द डिफरेंस। सर व्हाट अबाउट अडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो मेंबर हाँ या तो वो है, को वो पार्टनर हो सकते हिंदू, हैं? यहाँ वो हिंदू लॉ में है, डोंट वरी, वो होता है। ठीक है, एंड उसके वो केस में को पार्टनर हो सकते हैं क्या? हाँ होता है। एडॉप्शन इज लीगल इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, ठीक तो है, अडॉप्शन इज नहीं द तो सेम एज हैविंग चिल्ड्रन यस नेचुरली। यस यस, हाँ because we are promoting that na, it's with good हाँ। intention. Hmm. हम्म। ठीक है सर, इन ओके, थैंक यू केस सर। द क्वेश्चन इज, देयर इज वन क्वेश्चन मैं वो लेता हूँ एचयूएफ का ही, इन केस एक सेकंड। ठीक है, सो इन केस द क्वेश्चन इज, in case the karta goes bankrupt, then who in this case is liable for all the liabilities? Do all co-partners compensate? Try to understand. अगर कर्ता इंसॉल्वेंट हो जाता है, co-partners has to contribute to the extent of their share in the property, not more than that. तो इसमें क्रेडिटर्स का लॉस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी कॉमन सेंस। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। ठीक है सर, इन केस ऑफ एनी अदर रिलीजन, हाउ डज द पार्टीशन टेक्स प्लेस? हु इज द ओनर? देखो, हर रिलीजन का अपना अपना लॉ होता है, उस लॉ के हिसाब से राइट आपको देखना पड़ेगा। एंड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दोज लॉज। मैं जस्ट एक एचयूएफ है और उसका मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सो आगे, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट पार्टनरशिप एंड क्लब, पार्टनरशिप एंड क्लब। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लब का जब आंसर लिखोगे ना, हैव राइट एनपीओ दिमाग में रखना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आप बोलोगे सर आजकल वो रात में हम जाते हैं वो डिस्को, वो भी क्लब होते हैं, उनका नाम क्लब है, बट क्लब्स आर विथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विथ एन इंटेंशन ऑफ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट सर्विंग द सोसाइटी। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर वो भी क्लब होते हैं, वो तो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हाँ बोल रहे शुभम। सर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हाँ, क्या उसके प्लेस पे उसकी वाइफ को सकती है? बेटा या उसकी बेटी, बेटा या अगर बेटी मतलब नहीं है तो? नहीं है तो वो एचओएफ बंद हो गए रे भाई, कुछ नहीं आगे, एक्सटेंशन नहीं उसका कुछ। मतलब उसकी वाइफ बन नहीं सकती? नहीं नहीं, हाँ बेटा है तो वाइफ कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हर बेटा और बेटी, बिकॉज वो माइनर है सपोज, तो शी विल कैरी आउट राइट एज ए गार्डियन। जब हम माइनर रहते तो हमारे पेरेंट्स हमारे बिहाफ पे साइन करते हैं, बराबर ना? हाँ सर। जैसे आपके जो मार्कशीट होता है उस पर जनरली पेरेंट्स की साइन रहती है, बिकॉज यू आर माइनर। समझ में आ रहा है? तो शी कैन, अदरवाइज ऐसे नहीं कि वो अगर आपके आगे कोई नहीं है तो वो एचओएफ बंद हो गई ना। ठीक है, ठीक है सर, हम्म, थैंक यू सर। देन ठीक है, एंड द लास्ट वन वेरी सिंपल राइट, व्हाट इज पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन? ध्यान देना, दो ही पॉइंट्स है। पार्टनरशिप means and involves setting up the relation of the agency between the two or more persons who have agreed to enter into business for the gains with the intention to share the profits from such business. What is the association? Association evolve out of social cause. Like example, India against corruption, जो अन्ना हजारे जी ने स्टार्ट किया था, बराबर, इज एन एसोसिएशन. Association evolves out of social cause.
right? Where there is no necessarily motive to earn and share the profits. The intention is not to enter into business or gain. तो आप बोलोगे सर एनपी और एसोसिएशन, क्लब और एसोसिएशन में फर्क क्या है? क्लब जनरली बिजनेस करता है, बट दैट बिजनेस इज नॉट विथ इंटेंशन ऑफ डूइंग लाइक गेनिंग प्रॉफिट्स, दैट इज फॉर द सर्विंग दोज मेंबर्स, और वो अपने मेंबर्स को सर्व करता है. एसोसिएशन एट लार्ज पब्लिक को सर्व करता है. ठीक है. एग्जाम्पल, पार्टनरशिप टू रन बिजनेस एंड earn the profits, like members of charitable society, right, or religious association. Example, right, कोई तिरुपति के वगैरह एग्जाम्पल, राइट, या अपने दगड़ू शेठ का, और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और ए बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस, राइट, देन ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन वगैरह, ये सब एसोसिएशन है. एग्जाम्पल, आईसीआई इज एन एसोसिएशन. समझ? सो विथ एन इंटेंशन कि हमें उस सेक्शन को सर्व करना है, खाली उन मेंबर्स को नहीं, एट ए लार्ज हमें करना है. दैट इज एन एसोसिएशन. सो बार एसोसिएशन, दैट इज ऑफ एडवोकेट्स. मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, ऑफ प्रैक्टिशनर्स. सीए की एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. उनके विकासा स्टूडेंट की एसोसिएशन है, सीए स्टूडेंट्स की एसोसिएशन, विकासा बोल के नाम है. यू विल, आपको वो इंटर में अपने आप पता चलेगा, बिकॉज वो बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जो आर्टिकलशिप को जाते हैं बच्चे, उनके लिए विकासा बोल के. वो एसोसिएशन है, आपने कोई साइन वगैरह नहीं किया है. पार्टी ले लो, राइट, पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन, राइट. आप उसकी मेंबरशिप लेते हो, मतलब आप उनके लिए थोड़ी लायबल रहते हो. कल अगर कोई करप्शन में पकड़ा जाएगा तो आपको लेके जाएंगे कि आप मेंबर हो इसलिए. नो. समझ में आ रहा है? सो दे आर द एसोसिएशंस एंड विथ सम intention, they are not doing any business as such, right. चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, राइट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स पुणे में एग्जांपल. तो दैट एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑल द ट्रेडर्स. एग्जांपल, अभी लॉकडाउन के टाइम उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकम टैक्स में थोड़ी सहूलत देना, थोड़े डेट्स आगे करना. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. लॉकडाउन में दुकान ओपन करने के लिए परमिशन देना या उनको हेल्प करना, वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, ये एसोसिएशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती है, सीएस की एसोसिएशन होती है, स्टूडेंट्स की एसोसिएशंस होती है. देयर इंटेंशन इज नॉट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट, राइट. एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट ऑफ सोशल कॉज, where there is not necessary motive to earn profits and share them. The intention is not to enter into business, right. एसोसिएशन किस लिए? वो भी उन सेक्शन को क्या करना है, सर्व करना है. क्लब में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनको ही बेनिफिट मिलता है, बट ये एसोसिएशन सबको बेनिफिट देती है. समझ में आ रहा है? एट लार्ज ऐसे. उसमें मे बी क्लब में आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह देना पड़ेगा, ऐसे एसोसिएशन में नीड नॉट नेसेसरली कि आपको सब्सक्रिप्शन ही देना पड़ेगा. कहाँ पे हो भी सकता है, कहाँ पे टर्म्स में, कहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट, लाइक दैट. सो दे रिप्रेजेंट दैट सेक्शन. समझ में आ रहा है? देयर मोटिव इज बियॉन्ड जस्ट सर्विंग. सो दीज वर सिंपल, राइट. अगर आप चाहो तो गूगल पे भी बहुत सारे देख सकते हो, यू विल गेट मेनी डिफरेंसेस. ऐसे कुछ नहीं, जितने रिलेवेंट है उतने मैंने लिखे, या जितने मॉड्यूल में उतने मैंने कवर किए.